Hello guys, this is day 4. I hope हो जाए इतना दूर तक आने के बाद. We're all falling and we need a place to hide. कोई skip करो Safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay till the break of dawn. The cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see? We need some time. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we're all falling. कितना सुंदर लग रहा है ना ये जगह. ये जगह हिमालयाज़ के धौलाधर और पिरपांजल रेंज के बीच में आता है. Yes friends, this time I made an attempt to do the summit of Mount Friendship Peak standing tall at 5,289 meters. ट्रैक के सेकेंड डे में हम लोगों ने अपना टेंट लगाया था लेडी लेक बेस कैंप के कुछ मीटर्स ऊपर. यहाँ से हम लोगों का स्नो का ट्रेल स्टार्ट हो गया था और फिर 100-200 मीटर्स ऊपर हम लोग अपने गाइड के साथ एक्लिमेटाइजेशन के लिए भी गए थे, लेकिन वी हैड टू रिटर्न बैक एज स्नोफॉल हैड स्टार्टेड. वी वर रेडी फॉर द ट्रेनिंग पीरियड नेक्स्ट डे so that we could start our main summit trek at night. But at 12 AM आधी रात को हैवी स्नोफॉल हो गया था एंड हम हमारे गाइड के दिए हुए एडवाइस पर we were jerking off the snow from the tent so that the tent doesn't go under the snow. We knew that the snowfall hadn't yet stopped, but we didn't expect to see what came next. A little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. So this is day 3 and
बहुत हैवी स्नोफॉल कल से हो रहा है, रात के 12 बजे से। एंड अभी सुबह के 9 बजे हैं। इट्स स्टिल स्नोइंग आउट हियर। आज रात को हम लोगों को अपना समिट शुरू करना था, लेकिन लग नहीं रहा है कि होगा। 1000 मीटर इज लेफ्ट। वी आर एट 4000 मीटर ऑफ हाइट ना। एंड देखते हैं क्या होता है। हमारे पास और एक दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है। लेट्स सी। Yes, I looked frustrated because we didn't know what to do, whether to return back because we had our flight booked on a particular date, or to stay behind because we wanted to complete the summit. So only the next morning we could decide what we could do and what not. हेलो गाइस, दिस इज़ डे 4 एंड आज थोड़ी सी धूप निकली है। तो हमारे गाइड सोच रहे हैं कि हम लोगों को ले जाए आज रात या कल रात, वो असिस्ट करके बताएंगे। फिलहाल तो धूप निकली है बॉस और बहुत सही लग रहा है। कर की There goes our teammates. ओए होए। अरे सही तुम्हारे तो भाई स्टेप पूरा भांगड़ा वाला स्टेप कर दो अर्पित थोड़ा सा कुछ स्टेप्स। As you can see, 4th day को sunlight बाहर आ चुका था and it was a bright day for us. We were very happy because we could continue our journey towards the peak. And so हमने बहुत मस्ती किया उस दिन। और उसके बाद हम लोग का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया। ट्रेनिंग सेशन के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस कि टेक इट सीरियसली, लर्न हाउ टू यूज़ द गियर्स, लिसन टू योर गाइड। आपके गाइड आपको जो कुछ भी बोले सब पॉइंट्स दिमाग पे रखिए ताकि रात को एक्चुअल ट्रैक के समय आपको दिक्कत ना हो, आपके वजह से औरों को दिक्कत ना हो। बी सेफ एंड लेट अदर्स बी सेफ। So guys, it's 8 p.m. and tonight is the night when we should start for the summit. लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने टेंट पे ताकि हम लोग के गाइड डिसाइड कर पाए कि क्लाइमेट अच्छा है कि नहीं है जाने के लिए। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। देखते हैं क्या होगा, फिंगर क्रॉस्ड। एंड आई होप हो जाए इतना दूर तक आने के बाद। मैंने तो सोचा था यस्टरडे मैंने सोचा था इतना लाइक 16 आवर्स स्नोफॉल हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा था कि नहीं होगा, हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर आज क्लियर हुआ, धूप आया बाहर और अभी इसलिए वी आर वेटिंग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Can't you see we need some time, and we all sit around the fire. We feel a little warm now, and we all sit around the fire. We feel so much better now. हाँ जी भाई बोलो। तो ये है हमारे ज्ञान भाई। हाँ जी हम ही हैं, द वन एंड ओनली। पीक में सिर्फ 5 जन चढ़ सके और उनमें से एक हमारे टीममेट, हमारे प्राइड ज्ञान भाई। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? कैसा लगा आपको? बोलना चाहूँगा कि देखो भाई रास्ता मुश्किल था, सब कुछ फट गई, इवन वो भी ठीक है। बट हाँ लास्ट में बहुत मज़ा आया, और जब सबमिट करते हो ना एक दिल से खुशी मिलती है। एंड वन मोर थिंग, आई गॉट दिस, सो वाओ,
यो जय हिंद। जय हिंद। और ये मुझे लेके जा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम था आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। कंप्लीट नहीं कर पाए लेकिन शोल्डर तक गए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और इतना हाइट पे। लाइक जो लोग पहले गए हुए हैं बहुत करते हैं, लाइक छोटे छोटे ट्रैक बहुत करते हैं जो भी समिट हो, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं। मेरे लिए ऑल एट द सेम टाइम हो गया। स्ट्रगल बहुत था लेकिन वही स्ट्रगल में ही जीत है एक्चुअली। आपको सिर्फ एक्सपीडिशन नहीं करना होता है, यहाँ पे नेचर के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, क्लाइमेट के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो क्लाइंबिंग था रात को, आधी रात को -डिग्री टेम्परेचर में, वो कुछ अलग ही था। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड आई एम थैंकफुल कि मैं आ पाई यहाँ पे। और अभी अच्छे हेल्थ पे ही जा रही हूँ लेकिन फेस दिखाने के लायक नहीं रहा बहुत सनबर्न हुआ। जो भी हो, इट वॉज ओवरऑल अ नाइस एक्सपीरियंस एंड 4980 मीटर इज़ इनफ फॉर मी फॉर फर्स्ट टाइमर। चलो 300 मीटर रह गया, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप वो नाइट अपने एक्सपीरियंस करो जब 16 आवर्स बर्फबारी हो रही थी और हर जगह अवलांच हो रहे थे। ओह माय गॉड। एंड रास्ते में भी हम लोग ने शायद 2 से 3 अवलांच इनकाउंटर किए, हम देखे। बीच में है, हमारा टेंट वो होने वाला है, कवर होने वाला है, पूरा ढकने वाला है स्नो से, और चारों तरफ एवलांचेस। और रात भर हम लोग ने चारों तरफ, अभी तो स्नो वो मेल्ट हो गया, बट लेकिन फिर भी चारों तरफ ये देख avalanches हो सकते हैं रहे थे हमारे। चलिए, एक्सपीडिशन तो हमारा वहीं पे ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट डे हम लोगों को रिटर्न करना था और सिंस ब्यासकुंड उसी रेंजेस में आता है, हम लोग ब्यासकुंड की तरफ से होके धुंडी तक निकले। यहाँ पे टेरेन रॉकी मिला हमको बहुत। और ये फाइनली हम ब्यासकुंड आ गए हैं। ये है आपका ब्यासकुंड। One special thing about the Friendship Peak Trail is it introduces you to all traits of a mountain: scree, moraines, crevasses, snow boulders and what not. किसी किसी का तो नाम भी मैं नहीं जानती। We're all falling and we need a place to hide. मैं तो बस फ्रेंडशिप पीक चढ़ने आई थी, लेकिन साथ में लेकर जा रही हूँ माउंटेनियरिंग के ऊपर बहुत सारी नॉलेजेस, स्किल्स एंड बहुत सारी सुंदर लम्हे। और ये लम्हे ही तो है जो ज़िंदगी को सुंदर बनाती है ना गाइस? आप में से अगर कोई ट्रैवलर इस वीडियो को देख रहा होगा तो आप इस सवाल से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इतना स्ट्रगल करके, इतना पसीना बहाकर, इतना एनर्जी वेस्ट करके तुमको कीचड़, ठंड, बरसात, धूप, इन सब के बीच पहाड़ों में मिलता क्या है? यही आसपास की जगहों में भी पहाड़ मिल जाएगा, तुम वहाँ घूमकर क्यों नहीं आते? किसी नई जगह जाके अपने लिमिट्स को पुश करके, नए लोगों से मिलके, हाँफते दौड़ते, जब अंत में एक हाइट, एक नई ऊंचाई ज़िंदगी में हासिल होती है ना, वो सेटिस्फेक्शन उन पहाड़ों के खामोशियों में जब मिलती है ना बॉस, उसी को ट्रैवलिंग बोलते हैं। क्यों? मेरा ये ट्रैवल तो ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।